Hello class 12. Now I'm going to start with the chapter integration today. Now integration but actually is what? Integration actually is antiderivative, and derivative you know is what? Process of differentiation. Derivative is process of differentiation, and antiderivative is the process of integration. And derivation, this differentiation is much more clear to you. And now listen one thing. Suppose if we have to differentiate sin x, so how is I? D by dx of sin x, d by dx shows that we are differentiating sin x with respect to x. So when we differentiate sin x with respect to x, answer is cos x. Every one of you know. Now if we want to find out integral of this cos x, what we have to do is we have to integrate both sides of this one. And what is the sign of integration? This is the sign. This is the sign of integration. I've made it here. So this is the symbol of integration. Now suppose I am differentiating this, sorry, integrating both sides. Now this is the sign of integration. I put it on both sides. Now what? Derivative and antiderivative will cancel, though there is no need to show it by cancelling. It simply means that we have to find out the differentiation of integration of cos x. These will cancel, so integration of cos x is what? Sin x. So if differentiation of sin x is cos x, integration of cos x is what? Sin x. We have shown it here. Then suppose differentiation of x cube is what? 3x square. Similarly, if you integrate 3x square, you will get x cube. Then differentiation of ex is what? Ex, and integration of ex is also ex. Now note one thing. From 1 we have seen differentiation of sin x as cos x, but if I write differentiation of sin x plus 4, still you will say it as cos x because 4 की differentiation तो constant है, 0 ही होती है. Similarly differentiation of sin x plus 5 cos x, sin x plus 7 की differentiation करो तो भी cos x. So what does it mean बेटे? अगर मैं इसकी अब integration करूँ तो या इसकी करूँ, cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x है. cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x plus 4 है. cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x plus 5 है या sin x plus 7 है. So I have written here implies if we integrate cos x, what do we get? sin x आ रहा है, sin x plus 4 आ रहा है, sin x plus 5 आ रहा है, sin x plus 7 आ रहा है, so on कुछ भी हो सकता है. यहाँ मैं 8 डाल दूँ, 10 डाल दूँ, 12 डाल दूँ, तो क्या आएगा? So for that हमने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं बेटा, ऑलवेज विद द इंटीग्रल पार्ट. जो आप आंसर निकालते हो इंटीग्रेशन करने के बाद, उस पार्ट के साथ टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन. सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन ऑलवेज वी ऐड सी, विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टू एवरी आंसर ऑफ इंटीग्रल. जिसका भी आप इंटीग्रेशन निकालते हो उस आंसर के साथ आप हमेशा एक सी डालते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इट मीन्स मेरे को यहाँ पे भी क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब के साथ जब 3x स्क्वायर है तो 3x की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस सी वी शुड पुट हियर. सिमिलरली जब इसकी इंटीग्रेशन ई एक्स कर रहे हो तो आप ई एक्स पावर एक्स प्लस सी यू विल हैव टू पुट. क्लियर? सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज विल बी देयर. नाउ सिमिलरली आई हैव शोन इट कि एक्स क्यूब प्लस 3 का अगर प्लस सी कर दें, कांस्टेंट कॉमन एक कांस्टेंट ऑफ, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होएगी? एक्स स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विल बी व्हाट? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी. नो हाउ इट कम्स, दिस वी आर गोइंग टू डू. नो लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मूलाज टू फाइंड इंटीग्रल्स ऑफ वेरियस फंक्शंस. नाउ बिफोर दैट आई वांट टू डू वन थिंग मोर फ्रॉम योर बुक. सी बेटा, नाउ वी यूज टू राइट, सपोज मैंने आपको एक दिस साइड आई एम डूइंग इट. सपोज आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन. इस फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आप उसके साथ एक dx लगाते हो. दिस साइन इज शोइंग दैट यू आर इंटीग्रेटिंग सम फंक्शन. यू हैव टू इंटीग्रेट सम फंक्शन. सो एफ एक्स किसका फंक्शन, किस फंक्शन का करना है? एफ एक्स का. और विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है बेटा? डी एक्स के. तो डी एक्स मीन्स हमको एक्स के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है. सो एक्स इज वेरिएबल हेयर. सपोज लाइक आई हैव शोन इट यू लाइक वी हैव टू इंटीग्रेट दिस. इट मीन्स इसके साथ आप क्या लिखोगे? डी एक्स इज टू बी रिटन बिकॉज डी एक्स इज शोइंग वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अगर मैं यहाँ पे y डाल देती हूँ, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई डाल दिया, तो इट मीन्स इसको y के साथ इंटीग्रेट होना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एज कांस्टेंट माना जाएगा फिर. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो. नाउ दिस इज इन योर बुक ऑल्सो गिवन हियर that this is what fx dx. So integral
करना है आपको f का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज शोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली दिस इज व्हाट fx, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटेग्रांड. इसका इंटेग्रल जिसका निकालना है, दिस इज इंटेग्रांड. एंड x and this is what वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है. गॉट इट. सो एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी उन्होंने बता दिया कि c होता है. इंटीग्रेशन क्या है, फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल. एंड इंटीग्रल ऑफ f is such that f dash x is equal to fx. So this is no need to remember, बस आपको पता है constant of integration सब में ऐड होएगा. This is called integrand. This is showing that we have to integrate the function with respect to x, and this is the symbol of integration. Now let's move on to formulas, very important formulas. First of all, this formula I'm going to discuss with you, the most important formula. Now see, for every beta this algebraic functions, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो, दिस इज एक्स रेज टू पावर एन आई हैव रिटन, सो इट्स आंसर इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. सो सी तो आपको हर बार ऐड करनी है. सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स रेज टू पावर फाइव. सो व्हाट डू वी डू, एक्स फाइव इज एन हियर, सो फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन सिक्स आपको करना बेटा. गॉट इट. Now similarly another formula is like you used to differentiation से ये आपको एक बताऊँ, d by dx of x क्या होता है बेटा, वन. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगी, इज ऑलवेज x. सो अगर हम वन नहीं भी लिखते, वी जस्ट राइट लाइक दिस, dx इज इक्वल टू x. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लाइक 5 dx, सो इट इज़ व्हाट, 5 इंटू वन है, तो उस वन की इंटीग्रेशन तो क्या है, x है, तो इट विल बी 5x प्लस c. So C you have to put every time. Don't forget to add the C. Got it? Now similarly few trigonometric formulas we are going to discuss. Integration of cos x is sin x, because differentiation of sin x is cos x. So no need to every time compare, but आपको इन्हीं की उसी से उल्टे ही हैं बेटा. So this is integration of sin x is minus cos x plus C they are putting every time. Secant square x की इंटीग्रेशन इज वॉट, tan x प्लस सी. एंड tan x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, secant square x होती है. सो सिमिलरली cosecant square x की इंटीग्रेशन इज माइनस cot x प्लस सी. secant x tan x इंटीग्रेशन इज secant x प्लस सी. cosecant x cot x dx is minus cosecant x plus c. एंड इफ़ यू रिमेंबर योर इनवर्स फंक्शंस की भी आपने डिफ्रेंसिएशन करी हुई है इन योर फिफ्थ चैप्टर. सो साइन इनवर्स एक्स की बेटा डिफ्रेंसिएशन वॉज वॉट, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंस इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स एक्स. सिमिलरली दिस यू कैन शिफ्ट टू दिस साइड ऑल्सो, कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, माइनस वन अपॉन और माइनस डी एक्स अपॉन दिस, तो उसकी क्या कॉस इनवर्स एक्स होगी, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या आप ये, बट बेटर व्हाट, इस माइनस को आप यहाँ लिखो. अगर यहाँ माइनस आ जाता है बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन इससे अलग हो जाएगी. सो उस केस में उसकी कॉस इनवर्स एक्स. सिमिलरली दिस इज टैन इनवर्स एक्स. अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये कॉट इनवर्स एक्स होगी. और इन्होंने इसी की बोल दी कि माइनस कॉट, बट बेटर इज रिमेंबर इट लाइक दिस. अगर यहाँ माइनस आए तो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, अगर यहाँ माइनस आए तो दिस इज कॉट इनवर्स एक्स, और प्लस आए तो टैन इनवर्स एक्स. सिमिलरली इफ़ यू सी हियर, दिस इज सीकेंड इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन ये है, और इसकी इंटीग्रेशन इज सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी. सिमिलरली दिस इज माइनस कोसिकेंस इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन इज दिस, बट इसकी क्या है, अगर आप माइनस यहाँ शिफ्ट कर दो तो उससे अलग हो जाएगा ये. तो दिस इज कोसिकेंड इनवर्स एक्स. सिमिलरली ई एक्स की बेटा ई एक्स ही रहती है, वन अपॉन एक्स ओनली इन केस ऑफ दीज टू. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइक सी. लॉग एक्स की आप डिफ्रेंसिएशन क्या करते थे बेटा, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज व्हाट, वन अपॉन एक्स. सो यहाँ पे वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन इज ऑलवेज लॉग एक्स, और मॉड इसलिए डाला कि यहाँ पे हमारा लॉग के साथ पॉजिटिव ही आता है. सो लॉग पॉजिटिव फंक्शंस का ही निकलता है. सो दिस इज लॉग एक्स प्लस सी. बट यहाँ पे रिमेंबर कि आपका दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आ जाता है बेटे, तो फिर आप उसका लॉग नहीं करते, फिर आप उसको सपोज, बिकॉज वन अपॉन एक्स अगर आ जाता है तो आप सी है वन अपॉन एक्स स्क्वायर के केस में आप क्या करोगे, एक्स रेज टू पावर माइनस टू करके फिर उसकी इंटीग्रेशन करोगे, और डैट इंटीग्रेशन विल बी हाउ, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. सो दिस इज एक्स रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, डैट बिकम्स माइनस वन अपॉन एक्स.
वॉट एट 1/x² की -1/x है। इस केस में आप log नहीं बोलोगे, सिर्फ आप log किस केस में लेते हो जहाँ पे ये लीनियर वेरिएबल है, दिस इज ओनली लीनियर। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे आप बोलो कि इसको क्यों नहीं x⁻1 करके करा, तो बेटा फिर व्हाट डज इट हैपन, व्हाट हैपन्स x-1, तो हम n+1 करते हैं +1 अपॉन -1 +1, तो वो सॉरी +1 तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो वो तो इनडेफिनेट बात होगी जिसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, नीचे 0 होना। तो इस केस में आप -1 नहीं करोगे, 1/x की ऑलवेज log x। एंड वन थिंग मोर विच वाई आई वॉन्ट टू डिस्कस, a⁻x की डिफ्रेंसिएशन यू हैव डन, व्हाट इज इट, a⁻x की डिफ्रेंसिएशन के केस में आप बोलते हो whenever you a⁻x into log a हम लोग बोल देते हैं दिस। तो यहाँ बेटा क्या होएगा, a⁻x की जब आप इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी a⁻x अपॉन log a, रिमेंबर दिस इज a⁻x की जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हो दिस इज a⁻x log a, बट इंटीग्रेशन केस में a⁻x अपॉन में आप log a लिखोगे प्लस c यू विल राइट, गॉट इट। यहाँ पे भी आप जिसकी भी निकालोगे प्लस c तो आपको लिखना ही। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस, वन थिंग मोर, सॉरी लिसन हियर, though I am going to discuss questions in the next exercise, but one thing I want to discuss, सपोज बट आपको ये दिया हुआ 4x 3x+1, अभी तो हम लोग करेंगे, बट अगर यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, आपको बारी बारी से करना है। लाइक व्हाट, मान लो कि आपको ax² प्लस bx प्लस c की जब करनी है इंटीग्रेशन, तो आप पहले इसकी करोगे, यू कैन राइट इट लाइक दिस ax² प्लस bx प्लस c, और आपने सबके साथ dx लगा दो, और आपको जब व्हेन यू यूज टू डू इट तो आप डायरेक्टली आपको आ जाएगी, तो यू कैन डू, बट प्लस है या माइनस है तो हमको सबको अलग अलग करके उनकी डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करनी होती है। थैंक यू, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ 7.1 इन द नेक्स्ट वीडियो जस्ट नाउ।